Hello and welcome again to the G.I. Joe show. Yo, my apologies for not being in character today. The topic of the day is a rather serious one, and I felt that the usual buffoonery that passes off as the G.I. Joe show would be contemptuous, to say the least. So yeah, I'm sorry. I'd also apologize for the rest of the video not being in English, because the audience that I intend addressing through this video today are those from the subcontinent. So I am, however, going to try and add subtitles to this video. Now, I haven't ever done that in my life, so if it doesn't work, don't hate me. Rest assured, you know that I give you enough and more reason to do that anyway. So, enjoy. मेरे देसी भाइयों बहनों जो कि बरसगीर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों से मेरी वीडियोस देखते हैं, वो मेरे देसी भाई बहन जो कि जिनका ताल्लुक़ बरसगीर से है लेकिन अब वो बैरून मुल्कों में रहते हैं, वहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं, आप सबको मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में मैं G.I. जो शो या G.I. जो का किरदार नहीं निभा रहा। उसकी वजह यह है कि वीडियो का मौजू बेहद संजीदा है और इस संजीदगी में मैं कोई कमी नहीं लाना चाहता। आज के वीडियो में जो मैं बात करूंगा उसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो कौम परस्ती, हिब्बुल वतनी यानी कि नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म, देश प्रेम जिसको बोलते हैं, उसके साथ है। और मुझे लगता है कि इसके चलते आप में से कई लोग जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत प्यार बरसाया पहले मेरी वीडियोस देख के, शायद वो मुझे इसके बाद सब्सक्राइब ना करें, मेरी वीडियोस ना देखें। जी शायद नहीं, यकीनन ऐसे होंगे लोग। बुरा मुझे बहुत लगेगा, लेकिन मुल्क और कौम से बढ़कर कुछ नहीं है। जो इंसान अपने कौम और मुल्क का ना हो सका, वो किसी का नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, जैसा आप जानते ही होंगे, गुज़श्ता 2 माह से तिब्बत और हिंदुस्तान की जो सरहद है, ख़ुसूसन लद्दाख के ख़ित्ते में, जो कि साबिक़ रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था, वहाँ पे हिंदुस्तानी और चीनी फ़ौज एकदम आमने सामने हैं, आई बॉल टू आई बॉल। और कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ, एक झड़प में, उनके दरमियान के एक झड़प में कुछ ऐसा हुआ जो कि पिछले 45 साल में नहीं हुआ। फ़ौजियों की जानें गईं। अब हिंदुस्तान की जानिब से हमें ख़बर मिली है कि 20 फ़ौजी मारे गए हैं हिंदुस्तानी, जबकि चीन की तरफ से अदाद की कोई वजाहत नहीं हुई अब तक। अगरचे मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं उनकी माने तो 40 से ज़्यादा चीनी फ़ौजी मारे गए हैं, कुछ 50 तक कहते हैं। खैर, इस सब में अगर एक चीज़ है जिस पे कि किसी को कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, वो ये है कि दोनों तरफ से फ़ौजियों ने अपने अपने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये क्यों हुआ? पहल किसने की?
ان کی مانے تو ہندوستان کی زمین پہ کوئی اور فوجی، کسی اور ملک کی فوج جو ہے وہ داخل نہیں ہوئی. ہندوستان کی جو زمین ہے اس کے 1 انچ پہ بھی کوئی اور فوج قابض نہیں ہے. بھائی صاحب اگر یہ بات ہے تو آپ بتائیں پلیز کہ آپ کے فوجی لڑ کیوں رہے تھے اور مارے کیوں گئے؟ خیر چھوڑیں، یہ جو ہیں یہ سیاستدان ہیں اور سیاستدانوں کے سیاستدان ہیں. ان سے آپ اس سے زیادہ سچ کی آپ ان سے توقع نہیں رکھ سکتے. انڈین بھائی بہن شاید پاکستانی نیوز، خبریں، رپورٹس، یوٹیوب چینلز فالو نہ کرتے ہوں، لیکن ان جناب کی مانیں تو ہندوستان کی اس دفعہ اتنی بری، شرمناک اور ذلت بھری ہار ہوئی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے پورا کا پورا لداخ جو ہے گنوا دیا ہے. اب ایسی رپورٹس اور ویڈیو پڑھ کے، ایسی ویڈیوز دیکھ کے اس بھائی کا نا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پارا چڑھ جاتا ہے. اور پھر وہ ایسی ویڈیوز بناتا ہے جس میں کہ وہ جی آئی جو کا کردار نہ نبھا سکے، اس سے اس کو اور غصہ آتا ہے. اور بھائی یہ کیسی کائر قوم ہے، یہ کیسی بزدل فوج ہے جس نے کہ بغیر جنگ کے بغیر ایک گولی چلائے اپنی زمین، جس کو کہ ہم لوگ یہاں کے لوگ جو ہیں ہم اپنی زمین کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، اپنی زمین کو تھالی پہ سجا کے کسی اور کو تحفے میں دے دیا. کیسے لوگ ہیں، کیسی قوم ہے یہ، کیسی فوج ہے. تاریخ میں رخ کرتے ہیں تھوڑا. 1962 کی بات ہے، ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے. ہندوستان کی بہت ہی بری ہار ہوتی ہے اس جنگ میں، بہت ہی بری ہار. اور اس ہار کی کئی وجوہات ہیں. اہم کچھ یہ ہیں کہ اس وقت کے جو ہندوستان کے لیڈران تھے، جو سیاستدان تھے، ان کی فوجی آپریشنز میں مداخلت، دخل اندازی کرنا، اور جو اس وقت کی جو ملٹری براس تھی، جو فوجی جرنیل تھے، وہ آپس میں بھڑ رہے تھے اور یہ سب کھلے میں ہو رہا تھا. چنانچہ ہندوستان کی فوج کا جو حوصلہ تھا وہ چینی فوج کی نسبت بے حد کم تھا، اور اس ہار سے، اس شکست سے ہندوستان کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا. یہ بہت شرمناک ہار تھی. یہ ہار جو تھی یہ محض ہندوستان کو نہیں ہلایا، اس نے ایک اور ملک بے حد متاثر ہوا تھا اس ہار سے. حتیٰ کہ اگلے سال 1963 میں اس ملک نے پاکستان چین معاہدے کے تحت 34,000 اسکوائر کلومیٹرز اپنی زمین، جسے کہ ہمارے یہاں ماں کا درجہ دیا جاتا ہے. جی ہاں دوستوں، میں شخصگام وادی کی بات کر رہا ہوں، جو کہ یہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہوتا تھا. پاکستان قابض تھا اس پہ. اس نے اس پاکستان کی، اب اس سے اچھے الفاظ میرے پاس ہیں نہیں، پاکستان کی اتنی پھٹ گئی تھی کہ انہوں نے بغیر جنگ کے، بغیر ایک گولی چلائے، انہوں نے کہا جی نہ یہ جنگ ونگ ہمارے بس کی نہیں ہے، یہ ہندوستان کو مبارک ہو، جنگ میں جیتنا یا ہارنا تو وہی ہو.
उसी के नसीब में होता है जो जंग लड़ता है। खैर हमारी उतनी औकात नहीं है। आए चीन, ये लीजिए थाली में सजा के हम जी आपको दे रहे हैं 34,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी शख्सगाम वादी की। हाँ भाइयों बहनों, ये वो फौज है, ये वो मुल्क है जिसकी फौज एकदम मगरूर होके अपने आप को दुनिया की बेहतरीन फौजों में गिनती है, लेकिन कारनामे इनके, काम इनके सारे रजाकाराना है। जैसे किसी अरब बादशाह को सिक्योरिटी फराहम करना। ये वो फौज है जिनके बस में सिर्फ इतना है कि अपने निहत्ते शहरियों के ऊपर ये गोलियां बरसाएं, जुल्म तशद्दुद करें। ये वो फौज है, महारत इनकी इसमें है। चाहे वो इस वक्त जो बलूचिस्तान में हो रहा हो, चाहे वो KPK में हो रहा हो, या फिर जो इन्होंने बांग्लादेश में किया था, ये वो फौज है। इनके बस की नहीं है कि ये सामना करें किसी पेशेवर फौज की, बिल्कुल इनकी औकात नहीं है। और ये हिंदुस्तान को बोल रहे हैं, ओ कुछ तो शर्म करो बेगैरतों। तुम्हारी वो फौज है, वो बुज़दिल फौज है जिन्होंने करगिल में इतना कुट खाया था, और इतना कुट खाने के बाद इतने जलील हुए थे तुम लोग कि तुम लोगों ने अपने शहीदों की लाशें वापस लेने से इनकार कर दिया था। ये तो इनकी दिलेरी है। आपके मुंह से भाई साहब दिलेरी जो है, ये लफ्ज ही नहीं निकलने चाहिए। मतलब ये आप वो पलीत हो जाता है एकदम आपके मुंह से निकलते निकलते, उसका ना एकदम पुठा मतलब हो जाता है। तो एकदम उल्टा मतलब हो जाता है। तुम्हारी औकात नहीं है कायरों कि तुम हिंदुस्तानी फौज के बारे में बात करो। हिंदुस्तानी फौज वो फौज है जिसमें शैतान सिंह, कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह जैसे बेशुमार शेरदिल फौजी शुमार हैं, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के और अपनी जान की कुर्बानी दे के मुल्क के इज्जत को बुलंद किया है हमेशा। ये वो फौज है। और जाओ जाके अपने निहत्ते लोगों को मारो, तुम बस इसी का काबिल हो। बस भाइयों बहनों, और बड़ास तो मैं निकालते रह सकता हूँ, बस इतना कहना था। इसके बाद मैं वही बातें दोहराने लगूंगा, और दोहराते दोहराते मुझे नहीं लगता YouTube इतनी लंबी वीडियो की इजाज़त भी देती है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। पाकिस्तानियों याद रखें, चीन और भारत के दरमियान कुछ चल रहा है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब बड़े बात कर रहे हो बच्चों को चुप रहना चाहिए। समझ गए पुत्र हैं? चले भाइयों बहनों, इसके साथ इजाज़त लेता हूँ आपकी। आज योग करने का तो बहुत मन है, लेकिन जय हिंद बोलूँगा।